हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो भाई थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, ख़त्म होने जा रहा है धीरे धीरे। 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब चलेगा कौन सा 6th चैप्टर, जिसमें पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं बाद में बताता हूँ। तो भाई हमने सेकंड लॉ पढ़ लिया था, किसके लिए? साइकिल के लिए। हमने क्या पढ़ लिया? रेफ्रिजरेटर पढ़ा था, हीट पंप and then heat engine, and we talk about what? A cycle. These devices operate only in what? Cycle, not in processes. But now we are going for a process. We want to study about a process. We have studied cycle, but now we want to study about what? Process. So for a process, if we define second law of thermodynamics, then a term, a property comes into the picture, and that property is called what? Entropy. So now we are going to start the entropy. That what is entropy? What is the applications? What is the approach to solve the numericals related to what? Entropy. तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज क्या? एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है? Entropy is a measure of randomness or measure of irreversibility. In practical application, we can say that we have an example. Okay, we have an example like we have our room. This is your room. Okay, this is your room, and this is the fan. And the particles of the gas are well arranged before starting the what? Fan. Okay, these are the molecules of the gas or the air inside your room. Now you switch on the fan, and the fan is rotating. Now fan is rotating at a certain velocity or any speed. Now the molecules are moving here and there, and the randomness of the molecules increasing continuously. Randomness जो होगी molecules की क्या होगी? Increase करेगी. The molecules tends to move here and there, and the randomness is increases of the molecules because of the fan, because fan is applied some work on these molecules, and molecules are moving randomly. So we can say the entropy of the system. What is our system in this case? The gas, the molecules inside our room is the system. Okay, now the entropy of the system increasing, because entropy is a measure of what? Randomness, and randomness is increasing, so the entropy is increasing. So we can say the entropy of the system is increasing. What we can say? Entropy of the system is increasing. Okay, we have another example. Let's suppose you have a beaker. Inside this you have what? Water. Okay, and you supply some heat to the water. Then when you supply the heat to the water, then molecules are moving because of what? Internal energy of the system increasing. If the energy of the system increasing, then the randomness of the molecules is also increasing. So we can say the entropy of the system is increasing. Entropy of the system increasing. समझ गए भाई? आसान था। तो एंट्रोपी से अभी तक केवल इतना समझ में आया कि ये क्या है? रेंडमनेस है किसी भी सिस्टम की। इसका मेजर ऑफ रेंडमनेस और मेजर ऑफ इररिवर्सिबिलिटी, ये भी ध्यान रखना एक वर्ड, क्या? मेजर ऑफ इररिवर्सिबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? एंट्रोपी। ठीक है, मैथमेटिकली अब इसको क्या करते हैं? समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एंट्रोपी को समझाने के लिए सेकंड लॉ से ही हम स्टार्ट करेंगे। वहां पे तुमने क्या पढ़ा था?
मैंने स्टेटमेंट बताए थे केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लॉसियस इनइक्वालिटी की। किसकी बात करूंगा? क्लॉसियस इनइक्वालिटी की। क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई वी आर स्टडिंग क्लॉसियस इनइक्वालिटी वी आर गोइंग टू सी। ओके, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्लॉसियस इनइक्वालिटी की बात करना चाहते हैं तो भाई इसने एक इनइक्वालिटी दी, ठीक है, और उसको किया डिफाइन। तो इसने पहले तो देख लेते हैं कि क्या बोला। इसने बोला फॉर एनी साइकिल, ये है इंटीग्रल, और मैं बात कर रहा हूं किसी भी साइकिल के लिए। फॉर एनी साइकिल dq अपॉन t इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है, ये है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। इसको करना है हमको प्रूफ, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी के लिए बात करते हैं। देखो यहाँ इरिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में करेंगे क्या बात। लेट्स यू हैव अ सोर्स ऑफ टेम्परेचर TH, सोर्स ऑफ टेम्परेचर TH, and you have an engine and that engine is reversible. That engine is reversible, and you take heat from the source and that is heat is QH, and some part of the heat is rejected, that is QL to the sink, and that sink is at temperature TL, and some part of that heat is converted into what? Work, useful work, converted into what? Work, and that work is reversible. Okay, along with this we have an irreversible heat engine. Irreversible what? Irreversible heat engine, which operate in a cycle between two same operating temperatures, and it also takes heat from the source, and that heat is QH equals to previous. Okay, and reject some heat to the sink, and that is QL irreversible. What? Irreversible. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ irreversible engine की, यहाँ पे बात की थी reversible की, तो ये QL किसके लिए है? Reversible के लिए। ठीक है, so some part of heat is converted into work, and that work is irreversible work. Got it? Simple. Now mathematically we are going to see the Clausius inequality with the help of this figure, with the help of these two engines. Okay, now first you should apply Clausius inequality for what? Reversible cycle. मैं reversible cycle की बात करता हूँ, Clausius inequality apply करता हूँ for this engine, for रिवर्सिबल साइकिल। ओके, रिवर्सिबल साइकिल की मैं कर रहा हूं यहाँ पे बात। तो मैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी करूंगा अप्लाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? dq अपॉन t इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? QH। dq क्या है? डिफरेंस ही तो है किसका? हीट का। QH अपॉन TH माइनस QL अपॉन TL। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सर बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसको साथ में यहाँ पे लिख देना रिवर्सिबल, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल की। भाई QH तो दोनों में सेम है, QH for reversible cycle and QH for irreversible cycle both are same, but QL is not same. Why? See, if we talk about the reversible cycle, then the efficiency is maximum in reversible cycle, and that is a function of what? Temperature limits. Okay. तो भाई रिवर्सिबल में जो होगा वर्क मिलेगा हमें मैक्सिमम, क्योंकि इफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल की ज्यादा। अगर वर्क मिलेगा ज्यादा, वर्क किसका पार्ट है? इस QH का ही तो पार्ट है, तो यहाँ पे रहेगा QL क्या? कम। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ QL फॉर रिवर्सिबल साइकिल इज लेस देन QL फॉर इरिवर्सिबल साइकिल? क्या बोला? ध्यान से देखो, QL फॉर रिवर्सिबल साइकिल इज लेस देन QL फॉर इरिवर्सिबल साइकिल। क्यों? व्हाई? ये इसलिए क्योंकि रिवर्सिबल में क्या था? वर्क ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इफिशिएंसी है ज्यादा। वर्क ज्यादा मिल रहा है तो QL क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हीट रिजेक्टेड कम होगा। वर्क में हीट जो चली गई, अब बची क्या? कम, QL। ठीक है,
और इरिवर्सिबल की बात करूं तो इफिशिएंसी है कम एज कंपेयर टू रिवर्सिबल साइकिल, तो वर्क इज एज कंपेयर टू रिवर्सिबल साइकिल इज लेस, सो QL फॉर रिवर्सिबल साइकिल इज मोर। समझ रहे हो कि नहीं? ये आ गया। अगर मैं यहां से लिखूं Q डिफरेंस, इन दोनों की डिफरेंस की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? QL इरिवर्सिबल माइनस QL रिवर्सिबल लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां से आ गया ये, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आसान था, ठीक है, आसान था। अब बात करूंगा किसकी? फॉर इरिवर्सिबल साइकिल। इरिवर्सिबल साइकिल के लिए भी भाई लगाओ क्लॉसियस इनइक्वालिटी dq अपॉन t, तो यहां से क्या लिखूंगा? QH अपॉन TH माइनस QL अपॉन TL, और ये क्या है? इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इरिवर्सिबल को? फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो भाई, QH अपॉन TH माइनस QL इरिवर्सिबल क्या लिख सकता हूँ? Q डिफरेंस प्लस QL रिवर्सिबल लिख सकता हूँ, तो लिख देंगे भाई Q डिफरेंस प्लस Q रिवर्सिबल, लिख दिया भाई। माइनस था बाहर तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? TL अपॉन TL। देखो भाई ध्यान से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज देखना, यहां से मैंने क्या लिखा था? हाँ, एक चीज और देखो इसमें कि ये जो है रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए QH अपॉन TH माइनस QL अपॉन TL जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 0 के बराबर। वो होगा किसके? 0 के बराबर। क्यों होगा? देखो वो इसलिए होगा क्योंकि ये तो तुमने निकाल लिया चलो यहाँ से, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि रिवर्सिबल साइकिल में जो है एफिशिएंसी किसका फंक्शन थी? टेम्परेचर का। तो मैंने वहां पे आपको पहले जो बताया था वो मैंने बताया था कि QH अपॉन QL इज इक्वल टू TH अपॉन TL होता है। बताया था कि नहीं? याद करो, बताया था। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? TH यहाँ लिख दूंगा और QL यहाँ लिख दूंगा, लिख सकता हूँ। मतलब ये दोनों हैं बराबर, मतलब ये दोनों हैं बराबर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? रिवर्सिबल साइकिल के लिए इसको 0 लिख सकता हूँ। अगर इसको 0 लिख दिया देन ये टर्म क्या है? यही तो है, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से क्या बचा भाई? dq अपॉन t इज इक्वल टू माइनस Q डिफरेंस डिवाइड बाई TL। ये क्या है? क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर व्हाट? इरिवर्सिबल साइकिल। फॉर व्हाट? इरिवर्सिबल साइकिल दैट इज कम लेस देन 0, दैट इज कम लेस देन 0। तो यहां से देखो फॉर रिवर्सिबल साइकिल एंड फॉर इरिवर्सिबल साइकिल द क्लॉसियस इनइक्वालिटी इज लेस देन और इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ, कर दिया भाई प्रूफ। इसमें कोई समस्या आई? कोई समस्या नहीं थी, कितना ही आसान चीज था। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे और अच्छे से। देखो तो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल साइकिल। देखो भाई ये ध्यान रखना, रिवर्सिबल। अ सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल साइकिल ड्यूरिंग विच इट एक्सचेंज हीट विथ 3 थर्मल रिजर्वायर। A system undergoing a reversible cycle which exchange heat from 3 thermal reservoir. Here we have 3 thermal reservoir, not 2. 2 we have studied in previous chapter, that is heat engine, refrigerator and heat pump. Here we are talking about what? 3 thermal reservoir and a heat engine operating between these 3 thermal reservoir and exchanging energy, and developed some work which is what? 1000 kilojoule, and exchanging energy from a reservoir A which is what? 5000 kilojoule. Okay, find magnitude and direction of QB and QC, and we have to heat exchange between heat engine and B and C thermal reservoir. Okay, Q and QC, QB and QC. So the question is asked the magnitude. What of us? Magnitude. QB and QC का मैग्नीट्यूड चाहिए, एंड द डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन द हीट इज फ्लोइंग,
from reservoir to heat engine or heat engine to reservoir. We have to find the direction and magnitude both for this problem. Okay, now first what we have to do? We have to apply the conservation of energy. Okay, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं. कंजर्वेशन ऑफ energy. Let's suppose this direction is positive. Okay, now 5000 plus 1000 प्लस और माइनस. अगर हीट इंजन में एनर्जी जा रही है तो उसको पॉजिटिव ले लिया, और हीट इंजन से बाहर जा रही है तो उसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव लेंगे. ठीक है, और हमने अज्यूम कर लिया, क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया कि QB और QC का डायरेक्शन कहाँ है? इस साइड है. ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, मान के चल रहे हैं, लास्ट में अपने आप आ जाएगा. ठीक है, तो सिमिलरली इनको भी ऐड कर दूंगा मैं. ये माइनस QB माइनस QC इज इक्वल टू 0. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो इसको लगा देंगे हम. ठीक है, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई. अब क्या लगाएंगे? क्लॉथियस इनइक्वालिटी लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहा है, और रिवर्सिबल साइकिल में क्लॉथियस इनइक्वालिटी क्या होता था? dQ/T इज इक्वल टू 0. रिवर्सिबल साइकिल में ये क्या होता है? 0 होता है, बता दिया था. और इरिवर्सिबल में क्या होता है? लेस देन 0 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे dQ/T की बात करते हैं. तो देखो भाई, पहले बात कर लेते हैं ए रिजर्वायर की. 5000 डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना है? 1000. ठीक है, ये पॉजिटिव है. अब इसके लिए तो इसको नेगेटिव लूंगा, क्योंकि साइन क्या है? डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, अज्यूम किया था. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? QB डिवाइड बाई 300 माइनस QC डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे. देखो भाई, दो इक्वेशन है तुम्हारे पास और दो ही अननोन है, QB एंड QC. तो आसानी से क्या कर लेंगे? इनको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. बचपन में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा होगा कि दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे हो जाएंगे सॉल्व, और QB और QC की वैल्यू आ जाएगी कितनी? QB आ जाएगा माइनस 2250 किलो जूल, एंड QC क्या आएगा? 6250 किलो जूल. 6250 किलो जूल. जो क्वेश्चन ने पूछा था क्या वो हमने निकाल दिया है? हाँ, क्वेश्चन ने पूछा था मैग्नीट्यूड कितना होगा, बता दिया इतना होगा. और डायरेक्शन क्या होगा? देखो भाई, हमने एज्यूम किया था ये डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस. माइनस मतलब जो हमने एज्यूम किया है उसका अपोजिट आया. तो ठीक है, तो QB का डायरेक्शन यूं ना होके कैसा होगा? अपोजिट, यानी कि ऐसा होगा. जो हमने माना है उसका उल्टा होगा, क्योंकि अपने आप निकल के आ गया. क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे भाई. जो अब तक पढ़ा है ना एंट्रोपी में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी चेंज नहीं होता है. यहाँ पे ये दे दिया है, अगला क्वेश्चन आएगा उसमें QC की वैल्यू दे देंगे, यहाँ QA पूछ लेंगे. बस लगाना है, दो चीज है अपन को, क्लॉथियस इनइक्वालिटी लगानी है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है. इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, और क्लॉथियस इनइक्वालिटी में थोड़ा ध्यान रखना, अगर रिवर्सिबल दिया हुआ है तो बोल लगा देना क्या? इक्वल टू 0. इरिवर्सिबल है तो लेस देन 0. ठीक है, तो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं आज का लेक्चर. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इससे आगे, जो कि होगी क्या? एंट्रोपी के फंक्शंस के बारे में, कि एंट्रोपी पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है या फिर क्या प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है. ठीक है, चलिए.